Morning student of the BSc first year classes. I was described about to the related chapter, or you can say that about to the function of the mitochondria. One of the major function is performed on the F1 particle, that is a part of the mitochondria, along with the enzyme and a coenzyme. So that we will discuss, was discussed about to the glycolysis process, and on behalf of the glycolysis process, the Krebs cycle is Krebs cycle process which are preceding. So that on the basis of the glycolysis, because the glycolysis and the Krebs cycle and the oxidative decarboxylation, all the glucose metabolism, and in the glucose metabolism, the formation of the energy. Glucose is a very essential for the production of the energy, and that energy you utilize into the vital activities. So that the glucose is soluble in the water, and to the immediate and extent representation, and that to the quick action in the action of the body. So now go today's topic. I was left to the topic of the completion of the glycolysis process, in the process of the glycolysis to the end product of the pyruvic acid. तो हमने पिछले जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है बताया था, और ग्लाइकोलिसिस पूरे फुल प्रोसेस जो 9 स्टेप में पूरा होता था, और इसमें 1 to 4 जो प्रिपरेटरी फेज था, और जो है 5 to 9 जो फेज था वो ऑक्सीडेटिव फेज था। प्रिपरेटरी फेज कंजप्शन एनर्जी के लिए जाना जाता है, ऑक्सीडेटिव फेज वहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो उसके रिजल्ट पे एंड प्रोडक्ट पर कि 1 mole of the glucose is break down into the 2 mole of the pyruvic acid, which takes to the 1 mole, because the glycolysis process takes place into the cytoplasm of the cell, but the Krebs cycle is done by in the matrix of the mitochondria. This is the organelle, one of the organelles, and that is the important organelle. This is the responsible for that to the energy production. So that we will go now to the today's topic, where after the formation of the pyruvic acid, this is the end product of the glycolysis, which are go now to the formation of to the acetyl coenzyme. So that let us what happening in the process of the oxidation of the pyruvic acid. First of all, you are understand about to the what is the oxidation process of the pyruvic acid. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि pyruvic acid का ऑक्सीडेशन कैसे होगा। इसमें 2 प्रोसीजर होंगे, एक डिकार्बोक्सिलेशन होगा, एक डिहाइड्रोजिनेशन होगा। डिहाइड्रोजिनेशन क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर दूँ अलोंग विद द Krebs साइकिल, कि बहुत सारी प्रक्रियाएं होंगी, जैसे हाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा, डिकार्बोक्सिलेशन होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ करके। इस प्रकार से बहुत सारे मैकेनिज्म और प्रोसीजर यहाँ पे अडॉप्ट होते हैं, जिनके आधार पे ही रिएक्शंस आगे बढ़ते हैं और उसमें से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से, लेकिन सबसे पहले जो पिछले चैप्टर के कंप्लीशन में हमने एंड प्रोडक्ट प्राप्त किया था पायरुविक एसिड, वहां से लेते हैं और चलते हैं कि तो अब पायरुविक एसिड जो कि साइटोप्लाज्म में बन चुका है, अब वो आगे बढ़ेगा, और पायरुविक एसिड डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश नहीं करता, दैट इज नॉट टू द गोइंग इनटू द डायरेक्टली द माइटोकॉन्ड्रिया, अदरवाइज दिस इज द अनदर फॉर्म, दिस इज द फॉर्म ऑफ द एसिटिक एसिड, एसिटेट acetyl coenzyme after that to the enter into the mitochondria or the mitochondrial matrix and goes into the F1 particles. So that to the first of all ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन में अब 2 प्रक्रियाएं होंगी। हम आपको बता दें, पहले क्या होगा,
डीकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया होगी। अब देखिए, कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन में जब कार्बन जुड़ जाए तो उसको कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। कार्बन ऐड हो जाए या फिर कार्बन उस रिएक्शन में जाके जुड़ रहा है, कॉम्बिनेशन कर रहा है, लेकिन अगर किसी भी रिएक्शन में कार्बन वहाँ से लॉस कर दे CO2 के फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में वहाँ से निकल जाए तो उसको डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। देखिए, इसी में सक्सेसिव प्रोसेसेस है डीहाइड्रोजिनेशन। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जब क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कई बार जो है डीहाइड्रोजिनेशन की प्रक्रिया आती है, या फिर आपने पिछले लेक्चर में जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी फास्फोरिलेशन की भी प्रक्रिया हो रही थी। तो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि क्या ये है। तो आप देखें, डीहाइड्रोजिनेशन, डी द लॉस ऑफ द हाइड्रोजन इन द रिएक्शन। जो रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन, उस प्रोसेसेस में से जब हाइड्रोजन वहाँ से निकलता है तो उसको डीहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। और वो, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में NAD, FAD और GTP की बात की थी, दिस इज द टाइप्स ऑफ द हाइड्रोजन रिसेप्टर्स एंड दीज रिसेप्टर फॉर्म टू द ATPs energy, and that energy is used so that into the process of the dehydrogenation. So the process of the oxidation of the pyruvic acid first of all takes place to the decarboxylation, then to the dehydrogenation. In the one line to the pyruvic acid plus NAD, and in the presence of the pyruvate dehydrates, this is the whole enzymes for that to the conversion of the pyruvic acid into the acetyl coenzyme due to the presence of the also to the coenzyme, and that coenzyme which directly first is the acetic acid, and that acetic acid is combined with the coenzyme and form to the acetyl coenzyme, and that to the loss of the carbon in the form of the CO2, and to in the process of the dehydrogenation to the loss of the hydrogen, 2 moles of the hydrogen which received by the nicotinamide adenine dinucleotide and convert into the nicotinamide dinucleotide compound and which form to the ATPs and where। तो कहने का मतलब ये था कि ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुविक एसिड में 2 अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, और 2 अलग अलग प्रोसेसेस के माध्यम से पहले तो इसमें से CO2 का लॉस करेंगे हम रिएक्शन में, और उसके बाद फिर हाइड्रोजन का भी इसमें से लॉस होगा, और वो हाइड्रोजन रिसेप्टर NAD के प्लस के माध्यम से रिसीव किया जाएगा और NAD2H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट होगा, और ये जो है 2 मोल्स होते हैं तो 3 × 2 इक्वल टू 6 ATP का फॉर्मेशन कर देंगे। अगर हम इसको एक सिंप्लीफिकेशन मैनर में सिंप्लीफाई करें तो आप देखें तो सबसे पहले अगर हम पायरुविक एसिड लें, पायरुविक एसिड लिए तो पायरुविक एसिड सबसे पहले डीकार्बोक्सिलेशन में जा रहा है, तो डीकार्बोक्सिलेशन में जाके पहले एसिटिक एसिड बनाता है, एसिटिक एसिड बनाएगा, और एसिटिक एसिड के साथ साथ में क्या निकल जा रहा है, यहाँ से CO2 निकल जा रहा है। लेकिन दूसरे प्रोसेस डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, जब एसिटिक एसिड बन जाएगा तो वहां से 2 हाइड्रोजन निकलेगा, और ये 2 हाइड्रोजन NAD जो कि एसिटिक एसिड के साथ में उपस्थित है इसको रिसीव करेगा और ये बना देगा, और उसके साथ साथ में यहाँ पे कोएंजाइम भी होता है, तो कोएंजाइम जाके एसिटिल कोएंजाइम से जुड़ेगा तो बना लेगा एसिटिल कोएंजाइम प्लस, अब क्या बचा इसके साथ में NADH प्लस। तो मैंने पहले भी बताया कि 1 mole of the NADH2 that is formed 3 ATP and is the present is the 2 mole, so 3 × 2 equal to the 6 ATP is the form in the process of the ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुविक एसिड। ये मिडिल ऑफ द एक इंटरमीडिएट प्रोसेस है जो कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ता है, या यूं कहें कि जो पायरुविक एसिड है वो डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता, प्रवेश नहीं करता, वो एसिटिक
एसिडिक कोएंजाइम में फॉर्म जाता है, जबकि ये इसमें डीकार्बोक्सिलेशन और डीहाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया होती है। द लॉस ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम टू द दिस रिएक्शन, लॉस ऑफ द हाइड्रोजन, सो दैट टू द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द एंजाइम, बिकॉज दिस इज द केमिकल processes and the chemical processes always going on along with the particular enzyme is the pyruvate dehydrogenase. Pyruvic acid plus what is the process is going on? Dehydrogenation, so that on the basis of the dehydrogenation, that is the dehydrogenase process. तो यहाँ पे क्या बन गया, हमारे पास ये उपस्थित हो गया एसिटिल, यहाँ पे देखें एसिटिल कोएंजाइम, ये बस। अब ये एसिटिल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा, और जब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंजाइम और कोएंजाइम होते हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया लाइपोप्रोटीनस स्ट्रक्चर होता है और राइबोसोम भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से वो जो कोएंजाइम और एंजाइम होता है वो मदद करते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए। तो आइए देखते हैं, लेट अस सी व्हाट विल हैपन इनटू द प्रोसेस ऑफ द क्रेब्स साइकिल। द प्रोसेस ऑफ द क्रेब्स साइकिल इज आल्सो कॉल्ड टू द सिट्रिक एसिड साइकिल, also called to the CAC and also called to TCA, tricarboxylic acid. This is the citric acid is the which are have to the 3 successive carboxylic group, so that tricarboxylic acid, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रखने के कारण ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। क्योंकि फर्स्ट जो प्रोडक्ट होता है, पहला जो प्रोडक्ट बनता है, या फिर कहें कि ये जो साइकिल जिसके नाम पे है वो पहला जो प्रोडक्ट है वो सिट्रिक एसिड है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो क्रेब्स ने इसकी खोज की, इसलिए क्रेब्स साइकिल नाम पड़ा है, और जो है सिट्रिक एसिड बनता है इसलिए। और जब बेसिक्स में हम केमिकल कंपोजिशन पे जाएंगे तो वहाँ पे देयर आर द 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट एंड दैट्स सो कॉल्ड टू द ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल। सो नाउ गो to the beginning of to the process of the Krebs cycle. In the process of the Krebs cycle is a very complex and to the circular cyclic process in which to the end product of to the oxidation of the pyruvic acid, the acetyl coenzyme, acetyl coenzyme, और जो इस साइक्लिक प्रोसेस में जो लास्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बोल सकते हैं या फिर ऑक्जेलो एसिटेट, ये क्या होता है हम आपको बता दें। जबकि जो पायरुविक एसिड होता है, आप समझें पायरुविक एसिड आप याद रखें ग्लूकोज 6 मोल ऑफ द 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, 6 कार्बन होते हैं, लेकिन जब वो टूटता है तो मैंने कहा कि 1 ग्लूकोज इज द ब्रेक डाउन इनटू द 2 मोल ऑफ द पायरुविक एसिड। अब आप यहाँ पे समझे 6 कार्बन को लिए ग्लूकोज जो था वो 2 में टूटा तो 3 कार्बन का पायरुविक एसिड बना, 3 कार्बन कंटेनिंग पायरुविक एसिड। बट इन द वंस अगेन टू ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुविक एसिड, एक बार डीकार्बोक्सिलेशन और हो रहा है तो हम एक को लेके चलेंगे, तो अगर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन निकल जाएगा तो ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो जाएगा। तो लास्ट में जो एसिटिल कोएंजाइम है ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। देयर आर द 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एसिटिल कोएंजाइम एंड टू द दिस इज द ऑक्जेलोएसिटिक एसिड इन द प्रोसेस टू द लॉस देयर आर द 2 टाइम्स इज द लॉस of the carbon in the form of the CO2 to in this reaction, so that to the 4 carbon containing compound. So to the 4 carbon containing compound is the oxaloacetic acid and to the 2 carbon containing compound of the acetyl coenzyme, which combine together due to the presence of the enzyme citric synthetase. The formation of the citric acid is formation of the citric acid due to presence of the citric synthase to form citrate or the citric acid, which have to the 6 carbon, so that this compound is 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है सिट्रिक एसिड कहलाता है, जबकि ऑक्जेलोएसिटिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम आपस में जुड़ते हैं। 4 मोल
कार्बन के साथ में, यहाँ पे 2 मोल, तो यहाँ पे 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। और यहीं से एसिड जो क्रेब्स साइकिल की शुरुआत हो जाती है, और इसी क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत विद इन क्रेब्स साइकिल देयर आर द नंबर्स ऑफ द एटीपी विच आर formed, generated, rises, so that we are just look at here in the process of the Krebs cycle after the formation of the citric acid, which are a 6 carbon containing compound, and that is going into the process of the dehydration. अब पहली जो प्रक्रिया शुरू हो रही है तो उसमें जो पहला प्रोसेस है ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ द सिट्रिक एसिड, दूसरा प्रोसेस होता है डिहाइड्रेशन, द लॉस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। अब जबकि सिट्रिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल देखिए हमने इंडिकेट किया है एरो के माध्यम से, ये निकल रहा है इस रिएक्शन में, कौन सा एंजाइम, एकोनिटेज एंजाइम। एकोनिटेज एंजाइम उपस्थित होता है और वो डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, एंड ये कन्वर्ट हो जाता है सिस एकोनिटिक एसिड में, सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि कब, डिहाइड्रेशन, मतलब कि सिट्रिक एसिड जो है अगर वो वाटर को लॉस कर देगा तो सिस एकोनिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और कौन सा एंजाइम होगा, जो जिस प्रकार का प्रोडक्ट है एकोनिटेज एंजाइम। अब आगे चलते हैं, थर्ड स्टेप पे हम देखते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो सिस, अब ये भी देखें, ये भी 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, सक्सेसिव टर्म में चल रहा है 6 कार्बन को लेके। अब एक बार फिर सिस एकोनिटेज एंजाइम, एक बार हाइड्रेशन, मतलब यहाँ पे इस रिएक्शन में वाटर जो है जुड़ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद जो है देखिए यहाँ पे एरो हमने विद इन द रिएक्शन लगाया है, रिएक्शन की तरफ लगाया है, तो ये H2O जो है फिर से वो सेम एंजाइम की उपस्थिति में, देखिए डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन रिवर्सिबल प्रोसेस है, अपोजिट डायरेक्शन चीजें हैं, अपोजिट रिएक्शंस है, इसलिए सेम एंजाइम यहाँ पे यूज होगा। और एंजाइम होने से आइसोसिट्रिक एसिड, मतलब आप देखें अभी जितना फॉर्म है वो कह सकते हैं कि सिट्रिक एसिड का ही फॉर्मेशन हो रहा है, थोड़े बहुत अंतर के साथ में आइसोसिट्रिक एसिड और आइसोसिट्रेट के नाम से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट प्रोसेस में हम चलते हैं, जो कि सबसे पहला प्रोसेस है डिहाइड्रोजिनेशन फर्स्ट, dehydrogenation first. अब ये isocitric acid is going into the reaction in the process of the dehydrogenation, and what is the meaning of the dehydrogenation is the loss of the hydrogen molecule and received by to the hydrogen receptors, coenzymes, and form to the ATP with the presence of आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेशन। अब देखिए कैसे प्रोसेस में, प्रोसेस क्या है, डिहाइड्रोजनेशन है, तो और प्रोडक्ट क्या है, आइसोसिट्रेट है। तो हमने अगर एंजाइम को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आइसोसिट्रेट हो गया, आइसोसिट्रेट, और प्रक्रिया कौन सी हो रही है, प्रोसीजर कौन सा हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, तो हमने जिनेज कर दिया। अब मैं कह रहा हूं डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन इस रिएक्शन से लॉस होगा, तो लॉस होगा तो यहाँ पे देखिए NAD+ जो हाइड्रोजन रिसेप्टर कहलाता है, ये दोनों हाइड्रोजन को रिसीव करेगा, NADH2 बोलिए या फिर NADH+H+, यहाँ पे बने कंपाउंड बनाएगा। और चूंकि ये 2 मोल होता है, यहाँ पे 2 मोल होगा, तो 2 into, and the last chapter we are just mentioned that to the 1 mole of the NADH2 which form to the 3 ATP, so that here the 2 moles, so 2 into 3 is equal to 6 ATP is formed. यहाँ पे 6 ATP का पहली बार इस क्रेब्स साइकिल में फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम चलते हैं इसके बाद ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड या ऑक्जेलो सक्सिनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। हम अगले चैप्टर, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखें डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन देखिए एक बार फिर कि यहाँ पर CO2 का लॉस होगा, मतलब कार्बन का लॉस होगा, वो CO2 के फॉर्म में होगा, इसलिए यहाँ पे प्रोसेस पे कहा गया है डीकार्बोक्सिलेशन। कौन सा एंजाइम, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया हो रही है डीकार्बोक्सिलेशन की, तो इसलिए कार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा। और हम आपको यहाँ बता दें अगर कार्बोक्सिलेशन की भी प्रक्रिया होती तो भी कार्बोक्सिलेज ही एंजाइम वहाँ पे उपस्थित होता। अब देखें यहाँ पे इंडिकेट किया गया है CO2 लॉस हो रहा है इस रिएक्शन से। अगर अब देखें ये सारे अभी तक जितने भी प्रोडक्ट बने वो 6 कार्बन को कंटेन करने वाले थे, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, बट यहाँ पे CO2 के रूप में एक कार्बन निकल रहा है, तो अल्फा दिस इज इंडिकेटेड टू द कार्बन, कीटो ग्लूटेरेट, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। यहाँ पे 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड अल्फा कीटो ग्लूटेरेट है, और अल्फा कीटो ग्लूटेरेट के माध्यम से
यहाँ पे हम बढ़ेंगे आगे, 6 स्टेप में चलेंगे। तो 6 स्टेप क्या है, एक बार फिर से डिहाइड्रोजिनेशन सेकेंड और फिर से कार्बोक्सिलेशन सेकेंड, मतलब लगातार डिहाइड्रोजिनेशन और कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया होगी। देखते हैं, पहले हम देखते हैं कार्बोक्सिलेशन। द लॉस ऑफ द कार्बन वंस अगेन इन द फॉर्म ऑफ द CO2 इन द रिप्लेस्ड बाय टू द कोएसिटिल कोएंजाइम, and in the another reactions, another procedure, dehydrogenation once again is the second, which means that to the two hydrogen which are released from the reactions and received by to the NAD plus into NADDH plus H plus, and which means form to the 2 moles of the NAD and form to the 1 mole of is the NAD is to the 3 ATP, so that 2 mole is the 6 ATP once again is the form in this reaction. And whose kinds of the enzyme, which kinds of the enzyme is takes place for that is a product is क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कीटो ग्लूटेरिक एसिड है, तो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट बोला गया है। तो यहाँ पे देखें एंजाइम कौन सा लग रहा है, कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेशन की प्रक्रिया, इसलिए डिहाइड्रोजिनेस है। डिहाइड्रोजिनेशन महत्वपूर्ण है इसलिए कि जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा वो हाइड्रोजन रिसेप्टर के द्वारा रिसीव किया जाएगा और रिसीव करने के बाद ही तुरंत एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो हमारा महत्वपूर्ण क्या है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में एटीपी का फॉर्मेशन करना है, इसलिए हम यहाँ पे इंडिकेट बार बार कर रहे हैं डिहाइड्रोजन प्रोसेस। अब ये प्रोसेस अगला जो होगा वो फास्फोरिलेशन ऑफ एडीपी। तो अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनिल कोएंजाइम, देखिए यहाँ पे कोएंजाइम पहले से जुड़ गया, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पे सक्सिनिल अब कोएंजाइम जुड़ रहा है रिप्लेस करके CO2 को, तो सक्सिनिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हुआ। अब ये अगले स्टेप में जाएगा, तो वो स्टेप होगा फास्फोरिलेशन ऑफ द एडीपी, मतलब यहाँ पे फिर से एटीपी का फॉर्मेशन होगा। एडीपी में फास्फोरिलेशन मतलब एक फास्फेट ग्रुप यहाँ पे ऐड हो रहा है। देखिए यहाँ पे इंडिकेट किया गया कोएंजाइम रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, और इसके निकलने में तो देखिए यहाँ पे 2 बार कार्बन निकल चुका है। तो कार्बन निकलने के बाद क्या हो जाएगा, ये सारे प्रोडक्ट हो जाएंगे 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जितने भी होते हैं वो सब 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के रूप में हो जाएंगे। अब यहाँ पे पहुंचे थे फास्फोरिलेशन ऑफ द एटीपी विद 1 ATP 1 फास्फेट ग्रुप विच आर एडिंग विद द हेल्प ऑफ द GDP प्लस PI, मतलब इनऑर्गेनिक फास्फेट से जुड़ रहा है, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है, एसिटिल कोएंजाइम निकल रहा है, सक्सिनेट थायोकाइनेज की उपस्थिति में ये बन रहा है। तो 1 GTP से यहाँ पे 1 ATP का फॉर्मेशन होता है, तो 2 होते हैं, इसलिए 2 ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। 2 ATP is formed and succinyl coenzyme after the loss of the coenzyme, that is converted into the succinic acid, also called to the succinate, and that is going into the process of the once again to the dehydrogenation third. In the process of the dehydrogenation once again to the formation of the ATP through the hydrogen receptors, after the releasing to the hydrogen from the reaction and to the received by to the FAD, flavin adenine dinucleotide is converted into the flavin adenine dinucleotide compound, and to form 1 FAD is formed to the 2 ATP, so that is here to the presence into 2 FAD equal to the 4 ATP is formed once again. Due to the presence of the enzyme succinate dehydrogenase, which of the process is going on? Dehydration third. So that the name of the what is the process is of going on? Dehydrogenation. So that dehydrogenase enzyme is used and form succinic acid is formed to the fumaric acid, or also called to the fumarate. In the process of the fumaric acid is going to the once again to the hydration process, which means that to the water is adding the reaction presence of to the fumaric acid, or the fumarate is a fumarase enzyme, and fumarase enzyme is goes to the malic acid or the malate, and the process is the hydration. तो यहाँ पे H2O जुड़ रहा है, और H2O के जुड़ने से यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? मलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मलिक एसिड का फॉर्मेशन में आप देख रहे हैं कि मलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। अब मलिक एसिड के फॉर्मेशन के बाद अब देखिए मलिक एसिड जो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब ये कैसे होगा? तो देखिए
एक बार फिर से यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन फोर्थ जो है यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, फिर से हाइड्रोजन लॉस होगा और एक बार फिर से निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो आयंस है वो NADH+CH+ में कन्वर्ट होगा। 2 मोल है तो 2 × 3 6 ATP का फिर से फॉर्मेशन यहाँ पर भी हो जाएगा। और मलेट डिहाइड्रोजनेस प्रोसेस क्या है? डिहाइड्रोजनेशन का है। कौन सा प्रोडक्ट से बन रहा है? मलेट से बन रहा है, तो मलेट डिहाइड्रोजनेस और अक्विल। तो ये सक्सेसिव प्रोसेस में आपने देखा, मैंने जो बताया कि क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया में फिर से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड जो 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है वो एसिटिल एंजाइम जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुविक एसिड से लगातार बनता रहता है। तो एक पायरुविक एसिड को हमने शो किया, इसी प्रकार से लगातार पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन ग्लूकोज से होता रहता है और क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती रहती है जिससे कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता रहता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द एनर्जी बोला जाता है, एनर्जी का पावर हाउस है। तो आपने देखा तो अलग अलग। अब आपको यहाँ पे ये समझना ये है कि जो डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है तो हाउ मेनी एटीपी विच आर फॉर्म ड्यूरिंग टू द क्रेब्स साइकिल, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हियर टू द डिहाइड्रोजनेशन फर्स्ट। इस डिहाइड्रोजनेशन फर्स्ट में देखें यहाँ पर, तो प्रक्रिया में देखें कितने जो है एटीपी यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, इसके माध्यम से हम पूरा चलते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा इंडिकेट कर देते हैं ग्लाइकोलिसिस का आपको। ग्लाइकोलिसिस में आपको याद होगा टोटल 10 एटीपी का अगर हम कहें तो फॉर्मेशन होता है, 10 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और 10 एटीपी में हम कहें तो 2 एटीपी जो है वो यूज हो जाती है, 2 एटीपी इज यूज्ड। तो टोटल हमें कितना बचेगा? 8 बचेगा एटीपी, ठीक है। अब ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस की बात है। अब यहां पे आप देखें ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में, तो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में देखें तो अभी हमने यहां पे बताया था, देखिए इस पायरुविक एसिड में 2, यहां पर भी NAD से ये बन रहा है तो 6 ATP फॉर्म हो रहा है। तो यहां पे देखिए 6 ATP यहां से भी बना, तो कितना हो गया? 8 से 14 हो गए, 14 ATP का फॉर्मेशन हो चुका है ऑलरेडी। कहाँ तक? ऑक्सीडेशन। अब विद इन क्रेब्स साइकिल में देखें पहला डिहाइड्रोजनेशन फर्स्ट यहाँ पे है, तो पहले डिहाइड्रोजनेशन फर्स्ट से यहाँ पे 6 ATP यहाँ पे है, 6 ATP हमने ले लिया, 6 ATP प्लस करते चले जाएंगे। दूसरा यहाँ पे देखें एक बार फिर से 6 ATP। तीसरा आप देखें यहाँ पे GTP से 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ है, 2 ATP। फिर आगे चलें FAD से देखें 4 ATP का फॉर्मेशन हुआ है, 4 ATP। और फिर एक बार डिहाइड्रोजनेशन 4 से 6 ATP का फॉर्मेशन हुआ है, 6 ATP। तो टोटल करें, तो टोटल करेंगे तो पहले हम अगर टोटल कर लें, यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं क्रेब्स साइकिल की बात। क्रेब्स साइकिल की बात कर रहे हैं तो पहले टोटल कर लेते हैं क्रेब्स साइकिल को। 6, 12, 14, 14, 4, 18, 18, 6, 18, 6, 24, 24 एटीपी का फॉर्मेशन क्रेब्स साइकिल में होता है। कितने हुए? 24। और 24 यहाँ पे हो गए, ठीक है। 24 एटीपी हमको मिल रहा क्रेब्स साइकिल से, के लिख दे रहे हैं हम। 24 एटीपी यहाँ से मिला। ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुविक एसिड से हमें कितना मिला है? 6 एटीपी मिला है। और 10 जो है ग्लाइकोलिसिस से मिला है, मतलब पायरुविक एसिड से, और 10 ग्लाइकोलिसिस से। तो देखें कितना हो गया? 6, 4, 10, 2, 1, 3, 1, 4। तो 40 ATP which are obtained to the total procedure up to the glucose metabolism from to the glycolysis to the Krebs cycle via to the oxidative phosphorylation, oxidative decarboxylation of the पायरुविक एसिड। तो यहाँ पे 40 ATP का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन आपके बुक्स में 38 लिखता है, -38 लिखता है। क्यों लिखता है? ये 2 ATP जो कि आपको याद होगा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के प्रिपरेटरी फेज में, पहले और थर्ड फेज में जो 2 ATP यूज हो जाती है
फॉर द प्रिपरेशन फॉर द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के लिए, तो वो 2 ATP हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, 2 ATPs माइनस, और हमें कितना मिल जाएगा, 38 ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही 38 ATP लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस में लगातार चैनल में बनती रहती है, और इसी से हमें एनर्जी मिलती है। और यही एनर्जी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक पायरुविक एसिड, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है, और एक पायरुविक एसिड से ये जो है 24 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो 24 ATP इसी प्रकार से लगातार से क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया के दौरान, क्रेब्स साइकिल के प्रक्रिया में लगातार बनता रहता है। और क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया में जो बार बार हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं, वो लगातार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है, वहाँ पे रिएक्शन शुरू होते रहते हैं और वो उसमें जाते रहते हैं। तो इस प्रकार से आपने माइटोकॉन्ड्रिया के जो विशेष उसका फंक्शन है उसके अंतर्गत क्रेब्स साइकिल को देखा। और ये क्रेब्स साइकिल के विद इन द क्रेब्स साइकिल 10 स्टेप्स होते हैं। तो 10 स्टेप में आप देखें, पहला स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड इज द डिहाइड्रेशन, थर्ड इज द हाइड्रेशन, फोर्थ, अब यहां से अब ATP का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, इसलिए डिहाइड्रोजनेशन फर्स्ट कहा गया है। पांचवें में देखें, डीकार्बोक्सिलेशन फर्स्ट है। छठे में आएंगे डीकार्बोक्सिलेशन सेकेंड एंड डिहाइड्रोजनेशन सेकेंड, दोनों होगा, मतलब दोनों साथ साथ में होंगे, दोनों प्रक्रियाएं। फिर 7वें स्टेप में चलेंगे तो यहाँ पे फास्फोरिलेशन ऑफ ADP होता है, मतलब ATP का फिर से फॉर्मेशन होगा। 8वें स्टेप में देखें, डिहाइड्रोजनेशन थर्ड आ रहा है, इसमें भी फिर से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर एक बार 9वें स्टेप में चलेंगे तो क्या होगा, हाइड्रेशन की प्रक्रिया होगी, मतलब H2O फिर से इसमें फ्यूमेरिटिक एसिड में ज्वाइन हो रहा है और मलेट एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। और लास्ट में जो 10वां स्टेप है, एक बार फिर से डिहाइड्रोजनेशन फोर्थ की प्रक्रिया होती है, जिसमें फिर से 6 ATP का फॉर्मेशन होगा। तो पूरा 10 स्टेप इसमें, 9 स्टेप ग्लाइकोलाइसिस में, और 1 स्टेप जो है आपके ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में होता है। तो इसी पूरे टोटल को मिला के आपका बनता है पूरा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हो जाता है, और 40 ATP का फॉर्मेशन होता है, 2 ATP उसमें लॉस हो जाती है। तो इस प्रकार से इस चैनल में आपने देखा कि क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया जो है लगातार होती है। एनर्जी विच आर फॉर्म ऑन द F1 particle oxysomes of the mitochondria, which referred to the place is the cristae. Cristae is the inner membrane part of the mitochondria, which guarded by the outer membrane, and which fulfill to the matrix along with the enzyme, coenzymes, inorganic and organic constitutes, so that तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक महत्वपूर्ण जो चैप्टर है ये आपको हमने बताया। इसके बाद आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ और भी जो महत्वपूर्ण जो है क्या कहते हैं फंक्शन होते हैं, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि उसका जो काम है वो ये भी होता है कि इट परफॉर्म इम्पॉर्टेंट रोल इनटू द हीट प्रोडक्शन। हीट के प्रोडक्शन में, मतलब जो बॉडी में हीट का जो प्रोडक्शन होता है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। बहुत विभिन्न प्रकार की जो बायोसिंथेसिस मैकेनिज्म होता है, उसमें जो बायोसिंथेसिस मैकेनिज्म कैसे होगा आपको हम बता दें। ये अनदर इसका जो है फंक्शन है। जैसे मैंने हमेशा बताया है कि मेटाबॉलिज्म के 2 एस्पेक्ट होते हैं, 2 फेज होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। तो जो एनाबॉलिज्म होता है वो हमेशा ये एनर्जी के बेस पे होगा, बिहाफ पे, एनर्जी के बिहाफ पे होगा, क्योंकि एनर्जी का जो फॉर्मेशन होता है, द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी थ्रू द कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच टू द हायर अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज रिलीज, एंड दिस एनर्जी is utilized in the process of the
in the process of the anabolism. Anabolism is the synthetic process in which to form to the new type of the substance for the body and तो आपने देखा कि जितने भी एनाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो बायोसिंथेटिक प्रोसेस होते हैं और बायोसिंथेटिक प्रोसेस में जो कैटाबॉलिज्म से एनर्जी निकलती है, जैसा कि हमने अभी क्रेब्स साइकिल और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के माध्यम से आपको बताया कि जो एनर्जी निकलती है वो फिर से एनाबॉलिज्म प्रोसेस में फिर से यूज की जाएगी। मतलब ये कह सकते हैं कि एनाबॉलिज्म में ही सारी प्रक्रियाएं जो है पूरी होती हैं। और दूसरी चीज़ है एक महत्वपूर्ण और हम फंक्शन आपको बता दें, एक महत्वपूर्ण फंक्शन के माध्यम से जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती है वो अंडरगोइंग एक्युमुलेशन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द कैल्शियम एंड द फॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट सेल, जो ऑस्टियोब्लास्ट होती है वो उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो क्या करती है, वो कैल्शियम और फास्फेट का एक्युमुलेशन करती है। तो ये बहुत सारे विभिन्न प्रकार के फंक्शन थे। ये मैंने आपको क्रेब्स साइकिल बता दिया, ये ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुविक एसिड था। ये आज का चैप्टर छोटा था, मतलब आपको केवल एक डायरेक्शन में आपको समझना था कि कितने एटीपी और कौन से रिएक्शंस यहाँ पे होते हैं। तो अगले चैप्टर में हम दूसरे ऑर्गेनेल के साथ में फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।